Nowadays, all over the world, we are using too much pesticides. This is poisoning Mother Earth. Swamiji will elaborate on this. At our Goshala, we were just selling cows, but under the guidance of Swamiji, we are now looking forward to bringing Indian Desi cows, also called Gir cows. The Gir cow will be very beneficial for our country, as we will get meat to milk, real cow urine, and real gober. Swamiji will tell us more about Gir cows. Comme Suyanaren, Toti Para, mais vous pouvez dire Dimoroli. Ici, Toti, pour écouter Gorgata et faire Gorgata Seduction, c'est à cause. Ce premier Gorgala, Chidamana Laura, Saint-Pierre. Il passe beaucoup de misère. Il n'est pas facile ça, on va travailler, retourner à la case vite, à repenser pour autant de vaches, et après quand on gagne le temps, il est là pour le faire repenser. Combien de fois il y a des problèmes aux voisins, la police? Parce que vache, tu fais casse barrage et tu annonces légumes. Mais pour lui, sécurité et vache passe avant tout. T'as peine à me couler, merci. Hier, je viens d'investir et puis je suis mal parado. Go China, Snapaiga, Unal Goraj, Sarava, Sojumo Spiritualist. Quand Krishna t'a dit 6 jours, Rakshasi Putna, tu retrouves, et tu te dis poisson pour boire. Là, Mata Yashoda, tu amènes que de thé. N'amènes, il m'a amené que de thé, son lit. N'amène que plus de thé. Go Mata. Go Mata, il passe de médecine, tu as vos réserves. Alors, il m'a Yashoda et que Mandobin fait. Je t'amène les Krishna dans Goshala. Premier, ce qui prend la vache, tu ne passes pas sur les cours. Deuxième, tu ne payes pas les vaches. Troisième, tu ne prends pas le qui banne la poussière ou les gros vaches. Ce qui passe sur les cours. Et quatrième, ce qui passe au beurre. Alors, dans ma taille, je peux ça montre-nous que bon Dieu, il donne autant d'importance aux vaches. Mais il ne faut pas donner pour les gaz. Et nous, nous sommes hindous et nous persistons les points croisés. Tous les jours, nous autant passe vers l'abattoir et nous met à saisir les points croisés. Pas penser que nous pouvons voler du sapin là. Si nous ne pas fait non pour ça pour la vache, nous aussi nous allons gorge qui là. Au moins tous les jours, quand je prie, Dieu bon Dieu, protège ma vache. Tu me connais Gandhi sinon? Tu connais? Je te connais. Je vais dire Ahimsa Parma Dharma, non-violence. Gandhi dit connaître pour gagner l'indépendance, premier la loi qui s'est passée, c'est ban l'exploitation, fini tout, ferme tout, et surtout ban calculi. Est-ce qu'il passait? Non. Mais il prend ce photo et il colle le billet, prend billet, ramasse la poste sur le côté profond, c'est une deuxième féolie. Vishnu
नमस्ते जगदम्बिके लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु यो नित्यं अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्याहतस्तदितराणि त्रिनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वभूतानां अकाल करना वर्णाले परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राधा गोविंद जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा की कामना करता हूँ। परम करुणामयी वात्सल्य गौ माता के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा की कामना करता हूँ। प्रातः स्मरणीय भगवत संबंध ज्ञान प्रदाता अनंत श्री गुरु श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्रीरंग रामानुजाचार्य महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा की कामना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव जनों के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा की कामना करता हूँ। जय सदाते जय सदाते। श्री गौ कथा उत्सव का द्वितीय दिवस। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत नाम का संकीर्तन करें और गौ माता से ठाकुर जी से यह प्रार्थना करें हे प्रभु मेरे मन को मेरे वाणी को मेरे बुद्धि को अपने चरणों में लगाकर। श्री राधे। जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय जय राधा रमन
नहीं चित्त लखान चरित्र सुना
वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या, नहीं चित्त लखान चरित्र सुना। वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या, मन में न बसा मनमोहन तो। वह ठान किसी पर ठाने क्या, वह ठान किसी पर ठाने क्या। जिस बंदर ने इमली न चखी, जिस बंदर ने इमली न चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली न चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम किया हो को जाने ही क्या। वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या, वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। नहीं चित्त लखान चरित्र सुना, न तो कभी भगवान के चित्त को, दिल को पहचान सका, और न ही कभी किसी भगवान की कोई लीला में या कथामृत का श्रवण किया हो। न लीला को सुना कभी, न भगवान की कथाओं को सुना, न उनके हृदय को पहचाना। वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या, वह भगवान को क्या जानेगा। इसलिए बोलने में बड़ी परेशानी होती है महाराज। आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए ही कह रहा हूं। I'm not talking about you, अपने लिए। इसलिए अपने ऊपर न लेना कि हमें ऐसा कह गए, क्योंकि इसमें बंदर शुद्ध भी आता है। तो अबाउट मी, नॉट यू। नहीं चित्त लखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। वो हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, उनके बारे में क्या जानेगा। न कभी भगवान की कथामृत मैंने सुनी, न भगवान की कभी कथाओं को सुना, ना ही कभी भगवान के दिल को समझ पाया। तो फिर भगवान के बारे में जानकारी बिल्कुल ही नहीं होगी। वो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानेगा, जीरो। मन में न बस वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या, मन में न बसा मनमोहन तो। वह ठान किसी पर ठाने क्या, वह ठान किसी पर ठाने क्या। अगर हृदय में हमारे भगवान का एक नाम है मनमोहन, भगवान का एक नाम है मदन मोहन। भगवान दिल को चुरा लेते, मन को मोहित कर लेते। भगवान की खासियत है, हमारे श्याम सुंदर की यही तो खासियत है। और हमारे श्याम सुंदर जहां भी खड़े होते महाराज तिरछे खड़े होते, कभी सीधे खड़े नहीं देखा हो। भगवान जहां भी खड़े हैं, जो हमारे वृंदावन के ठाकुर जहां भी खड़े हैं, वहां तिरछे खड़े, सीधे कहीं नहीं खड़े होते। और एक नहीं महाराज, 3 जगह से टेढ़े खड़े ऐसे हैं। आप देखेंगे तो ऐसे 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 खड़े, सीधे खड़े ही नहीं होते कहीं। श्याम सुंदर कभी सीधे खड़े नहीं होते। श्री राधे। तो मनमोहन शब्द आया ठाकुर जी के, भगवान के लिए शब्द है मनमोहन। मन को मोहित करने वाले, मन को चुराने वाले, मन को अपनी ओर खींचने वाले,
भगवान का स्वरूप ही ऐसा, भगवान की आंखें, भगवान की चितवन, हर भगवान का हर एक अंग ऐसा कि अगर एक बार ध्यान से देख लें तो अपनी ओर खींचता है। बिंदु जी ने अपने पद में भगवान की आंखों के बारे में कहा प्रभु ये आपकी आंखें बड़ी खराब है। भगवान ने कहा मेरी आंखों में क्या गड़बड़ी होगी भाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? कहा आपकी आंखें बहुत खराब है प्रभु, लोगों पर जुल्म करती है। जुल्म समझते हो? भाई किसी पर अत्याचार करना, जुल्म करना, जुल्म समझते हो? जुल्म उर्दू शब्द है। कहा ये जो आपकी आंख है ये जुल्म करती है प्रभु। मेरी आंखें जुल्म, मेरी आंखों की तो लोग तारीफ करते हैं, क्या तारीफ करते होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो बड़ी जुल्म करती है, अत्याचार करने वाली है आपकी आंखें। भगवान ने कहा हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका जो हमारी आंखें आज अत्याचार करने वाली हो गई? कहा बहुत अत्याचार करती हैं। कहा हमने किया क्या है? तो बिंदु जी अपने पद में लिखते हैं, कहा प्रभु ये अर्ज सांवले सरकार हम सुनाते हैं, ये अर्ज सांवले सरकार हम सुनाते हैं, किन्हें आपके दिनों पे जुल्म ढाते हैं, ये अर्ज सांवले सरकार हम सुनाते हैं, ये अर्ज सांवले सरकार हम सुनाते हैं, किन्हें आपके दिनों पे जुल्म ढाते हैं, किन्हें आपके दिनों पे जुल्म ढाते हैं, ये अर्ज सांवले सरकार हम सुनाते हैं, ये अर्ज सांवले सरकार हम सुनाते हैं। न पूछते हैं किसी को, कुछ बताते हैं, न पूछते हैं किसी को, कुछ बताते हैं, इधर भी दिल को ये पाते हैं, घर बनाते हैं, इधर भी दिल को ये पाते हैं, घर बनाते हैं, जिन्हें आपके दिनों पे जुल्म ढाते हैं, जिन्हें आपके दिनों पे जुल्म ढाते हैं, ये अर्ज
इतना विद्रोह करवाते और विद्रोह करवाने के बाद ख्याल दिल को भी अपनी तरफ मिलाते हैं, यानी कुछ चारों तरफ से खींच खांच करके जो दिल में थोड़े बहुत इधर उधर के अरमान बचे हुए होते हैं, घर का, परिवार का, अच्छा खासा इस दुनिया का, उन सबको खत्म करके अपनी तरफ ले आते। प्रभु घर परिवार छोड़ा देते, बीवी बच्चे छूट जाते, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता, दुनिया की नजरों में पागल हो जाता है जी, अरे पागल हो गया, दिमाग खराब है, जब देखो तब करता रहता है हरे कृष्णा राधे राधे, दिमाग खराब, क्या मिलेगा इससे? कुछ काम धंधा कर लो भाई, भोजन पानी में मिलेगा। तो संसार की नजरों में बिल्कुल निकम्मा, नकारा, किसी काम का नहीं, ऐसा बना देते। अच्छा खासा घर था, परिवार था, और प्रभु सब कुछ खत्म कर दिया। थोड़ी बहुत जो खिलाफत भी कर लेते, रिवोल्ट भी करते, तो रिवोल्ट थोड़ा बहुत नहीं करते, पूरा तख्ता पलट कर देते महाराज। ऐसा रिवॉल्यूशन होता कि पूरा नक्शा ही चेंज हो जाता। श्री राधे। ये आपकी आंखें इतनी खतरनाक है, ये गरीबों पर ही करते महाराज, अमीर और सच्चाई है भगवान गरीबों पर ही करते, अमीरों को ठाकुर जी बड़ी मुश्किल से बोलते हैं, ध्यान रखना। बहुत इजी है गरीब के लिए भगवान को पाना। पुअर मैन बड़ी जल्दी भगवान को पाता है, और धनी आदमी बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल, उसके लिए टफेस्ट आप कह सकते हैं, और पुअर के लिए इजीएस्ट कह सकते हैं, उसके लिए मोस्ट टफेस्ट कह सकते हैं भाई, दुनिया का सबसे ज्यादा। और इसके और गरीब के लिए सबसे इजी है, बड़ी आसानी से भगवान गरीबों को मिलते हैं, और कहा प्रभु ये गरीबों पर ही जुर्म ढाते हैं, और अमीरों के साथ कुछ हो जाए तो लोग कुछ कहता भी नहीं, जीव तो गरीबों के ऊपर ही कहता है, बातें बनानी है महाराज, कुछ बात करनी है तो गरीब मिलता है आसान। और हमने प्रभु ठाकुर हमने कुछ भी गलत नहीं कहा, चलो अपने तरफ मिला लिया दिल को, कोई बात नहीं, विद्रोह करवा दिया कोई बात नहीं, घर बना लिया तब भी कोई बात नहीं, उसके बाद की स्थिति और खतरनाक है। तो दिल चुरा के न जाने किधर को जाते हैं, तो दिल चुरा के न जाने किधर को जाते हैं, बयान सब हमारे सच हैं, कसम खाते हैं, ये अश्रु बिंदु गंगा जली उठाते हैं। मेरे मालिक, इसके बाद तो फिर पता नहीं कहां चले जाते हैं लेकर के दिल को। इतना करने के बाद फिर भगवान जाने कहां लेकर जाते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाते, कहीं भी, किसी भी जगह, घर बार सब छोड़ देता जी, वो बेचारा इधर से उधर मारा फिरता, कई बार तो हो सकता प्रसाद भी ना मिले, क्योंकि दुनिया जल्दी से थोड़े देती है, और पागलों को तो बिल्कुल ही नहीं देती, और संसार की नजर में भगवत सेवा करने वाले पागल ही होते हैं। हाँ, उनके नजर में पागल बोले काम धंधा तो इसको कोई है नहीं, बिल्कुल पागल हो गया, पैसे की भी बर्बादी, समय की भी बर्बादी, भगवान जाने क्या करता कर रहा है। अरे भैया घर देखो, परिवार देखो, दुनिया देखो, दुनियादारी देखो, इसमें क्या लगे पड़े इन चीजों। श्री राधे, जय श्री राधे। ये हालत है आपके, श्री राधे। हालत इसलिए है क्योंकि मनमोहन से प्रेम नहीं हुआ। ये अश्रु बिंदु गंगा जल उठाते हैं, गंगा जल के रूप में आंख से गिरने वाले आंसू है प्रभु मेरे हाथ में, और इस गंगा जल को लेकर कसम खाकर कह रहा हूं, जो भी कह रहे सब सच कह रहे, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोला हमने, बिल्कुल सत्य बोला है। ये अश्रु बिंदु गंगा जल
बांसुरी उठाते हैं कि नैन आपके दिनों पे जुल्म ढाते हैं कि नैन आपके दिनों पे जुल्म ढाते हैं। हे अर्ज सामने सरकार हम सुनाते हैं। हे अर्ज सामने सरकार हम सुनाते हैं। ये विनती है प्रभु कि आपकी जो आंखें हैं वो जुल्म करती हैं और सब सत्य बोल रहा हूं, कसम खाकर कह रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि भगवान मनमोहन है। और जब जीव किसी चीज पर मोहित हो जाए ना, आपके यहाँ अभी तो ठंड है, जब गर्मी और बरसात का मौसम आता होगा, आपने इंसेक्ट्स को बल्ब के ऊपर में फ्लाई करते हुए रात्रि में देखा होगा, इन द नाइट। कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ वो आते और बार बार उससे टकराते, और जब वहां जाते तो उसके बाद जलन होती है, शरीर जलता तो नीचे गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब प्राण उसमें कुछ संचार होता, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक होता, ताकत बनता, वो फिर उड़ता, फिर जलता, फिर गिरता, और तब तक वो उड़ता रहता और गिरता रहता जब तक कि उसके प्राण न निकल जाए। उसे पता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो इतना प्रेम करता है महाराज कि उसके बगैर रह नहीं सकता। इतना प्रेम करता है वह, उसे पता है मैं मरूंगा, क्योंकि बार बार उसे जलन हो रही, जलन होने के बावजूद भी वो बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। और तब तक जब तक कि शरीर में प्राण बचा हुआ है, जब तक श्वास चल रहे हैं, जब तक वो ब्रीथ कर रहा है, थोड़ा ब्रीथ करता, फिर उड़ने की ताकत इकट्ठा करता और फिर उड़ता। श्री राधे पता होने के बावजूद श्री राधे, क्योंकि वो प्रेम करता है, भगवान का स्वरूप ही। आप इसको ऐसे देखा जाए तो कह सकते हैं, उदाहरण के लिए भगवान निराकार नहीं है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा, ऐसा ना समझना कि लाइट स्वरूप दिखाई दिया ठाकुर जी, मैं सिर्फ एज एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। भगवान सदैव साकार है और भगवान लाइट स्वरूप में नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट भगवान नहीं है। अब किसी को नहीं दिखता तो अलग बात है, उल्लुओं को सूर्य नहीं दिखने से सूर्य भगवान नहीं है, ऐसा नहीं होता। श्री राधे। हाँ, जीव उस इंसेक्ट्स की तरह है, लेकिन ध्यान रखना सभी कीड़े वहां नहीं जाते, कुछ कीड़े फ्लाई करते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स हैं इस प्लैनेट्स पे वो सभी नहीं फ्लाई करते, कुछ फ्लाई करते हैं, जिनको उनसे प्रेम होता, जो उनसे प्रेम करते हैं, लव करते हैं, वही फ्लाई करते हैं। तो जीव की भी स्थिति यही है, इंसेक्ट्स मतलब जीव, और आप उस लाइट को इन द फॉर्म ऑफ गॉड कह सकते हैं। तो जिसको प्रेम होगा वो फ्लाई करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि शरीर में प्राण है। श्री राधे। तो भगवान के बारे में जानने वाला भी वही है। मन में न बसा मनमोहन को, नहीं चित्त लखान चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मनमोहन को, वह ठान किसी पर ठान ही क्या, वह ठान किसी पर ठान ही क्या। अब जब मन में, हृदय में मनमोहन बसे ही ना हो तो फिर क्या हो सकता है हमारा? कुछ भी नहीं हो सकता।
नहीं चित्त लगा न चरित्र सुना, न दिल में मनमोहन है, वो किसी पर ढाल क्या ढालेगा, किसी के साथ क्या करेगा? जिद तो तब करेगा, रूठना मनाना तो तब हो जब हम प्रेम करें। बिना प्रेम के रूठना मनाना, हम रूठ गए किसी से, अब रूठ गए तो रूठ गए, कोई जानता नहीं आपको कौन मनाने आ रहा है, नोबडी। क्योंकि आपके बारे में किसी को अगर जानते भी हैं तो बोले जी कथा करने आए थे, अब मैं यहां से चला जाऊं कमरे में रूठा पड़ा, तो मुझे कौन मनाने आ रहा है? कोई भी नहीं, क्योंकि कोई मुझे जानता ही नहीं। तो रूठना मनाना तो तभी संभव है जब आप किसी को जानते हैं या आप किसी से प्रेम करते हैं। जानने से भी नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक न तो मनाने कोई आने वाला है, न रूठने से कोई आने वाला है। तो अगर मन में भगवान का वास ही नहीं है, हमारे श्याम सुंदर आए ही नहीं है, मनमोहन आए ही नहीं है, मन में न बसा मनमोहन तो वह ठान किसी पर ठान ही जा, वह ठान किसी पर ठान ही क्या। जिस बंदर ने इमली न चखा, जिस बंदर ने इमली न चखा, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली न चखा, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम किया को जाने क्या। वह प्रेम की आहों को जाने क्या, वह प्रेम की आहों को जाने क्या। महाराज जिस मंकी ने कभी इमली नहीं खाई हो, जिस बंदर ने कभी इमली का स्वाद नहीं देखा कि इमली खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है, उसका टेस्ट कैसा है, उस बंदर को अगर अमृत दे दो तो उस बंदर को क्या पता अमृत क्या होता है, अमृत के मीनिंग को क्या जानेगा। जिस बंदर ने अभी तक इमली नहीं खाई, उसको इमली का स्वाद नहीं पता। श्री राधे। यहाँ बंदर शब्द उस जीव के लिए है जो भगवत तत्व से दूर है। श्री राधे। आप सब लोग तो भक्त हैं, आई नो, यू आर द मोस्ट, आप लोग मोस्ट वाले पोजीशन में आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट भक्त कह सकते हैं। और बंदर मेरे लिए, मैं अपने लिए कह रहा हूं, आपके लिए। जिस बंदर ने इमली न चखा, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। सुधा मीन्स अमृत, सुधा कहते हैं अमृत को। वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिस मंकी ने कभी इमली नहीं खाई महाराज, उसका स्वाद उसे नहीं पता। उसे अगर आप अमृत दे भी दें और पूछे भाई ये क्या है, तो कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। अभी तक इमली का स्वाद तो पता नहीं उस बंदर को, उस जीव को। वो अमृत का स्वाद कैसे बताएगा। वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम किया हो जाने क्या। वह प्रेम किया
राहों को जाने ही क्या। श्री राधे। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी, कौन सा प्रेम, मैंने पहले भी कहा है फिर कह रहा हूं, प्रेम संसार से नहीं होता। संसार से जो होता है ना उसका नाम है लव। प्रेम का कोई अंग्रेजी नहीं है पता है। प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है, फुलफिल है, इसमें सब कुछ, इसमें प्यार के लिए तो है लव। श्री राधे। जब दोनों में कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं लव। जब म्यूचुअल हो ना, म्यूचुअल का मीन्स यानी बराबर है, दोनों तरफ से गिव एंड टेक की पॉलिसी है बात। अगर मैंने दिया तो बदले में मुझे चाहिए, नहीं मिला हो सकता है दोनों में से कोई एक ना एक लतिया देगा, आउट, चल हमारी अच्छी की तैसी, तुम्हारे जैसे 20 मिलेंगे मुझे, चल भाई। हाँ, अब वो चाहे पत्नी आपको लतिया दे या पति आपको लतिया दे, दोनों में से कोई ना कोई, हस्बैंड और वाइफ में से कोई ना कोई एक गड़बड़ करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे वापस नहीं मिल रहा, रिटर्न नहीं मिल रहा। अगर रिटर्न नहीं मिला, ये लव का सिचुएशन ऐसा है महाराज, लव की व्यवस्था ऐसी है, लव में कोई ना कोई आपको थ्रो आउट करेगा ही करेगा। अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, मे बी वो वाइफ हो, मे बी वो हस्बैंड हो, मे बी वो सन हो या फादर हो, कोई हो, डॉक्टर हो, आई डोंट नो, अभी आप लोग जाने, आपका काम जाने। तो ये लव का फॉर्म है जिसमें गिव एंड टेक की पॉलिसी है, म्यूचुअल हुआ, बराबर की व्यवस्था, मिलेगा तो देंगे। आप लोग निमंत्रण भेजते हैं किसी को, कोई शादी में, विवाह में, निमंत्रण उसी को जाता है जिसने मुझे निमंत्रण दिया है। उसने अपने घर में शादी में मुझे नहीं बुलाया था, मैं क्यों दूं? आप लोग करते हैं? हाँ, करते होंगे, पक्का करते होंगे, सवाल ही करते हैं तो नहीं करते। बोले जी उसने तो हमें दिया नहीं था, हम क्यों दें? ना, हम भी नहीं देते। जब उसने हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है तो हम क्यों रखें? ये है लव। जहां आपने एक हाथ लिया और दूसरे हाथ दिया, और अगर एक हाथ से नहीं दिया जा रहा है तो फिर अगर वो दे नहीं रहा तो हम मैं ले नहीं रहा हूं, मैं दे नहीं रहा हूं तो वो भी नहीं देगा। यानी ये बराबर व्यवस्था है, इसमें लेना और देना बराबर अवस्था में चल रहा है। वो मुझे दे रहा है तभी मैं उसको दे रहा हूं, अगर वो नहीं दे रहा तो मैं भी नहीं देने वाला। मैं क्यों दूं? मेरे पास क्या फ्री का है? फालतू में पड़ा है मेरे पास क्या जो मैं उस पर उड़ेलता रहूं, बार बार उसे देता रहूं? अलग दूसरा देखेंगे। ये है लव की परिभाषा। और प्रेम ये प्योरेस्ट फॉर्म है। प्रेम का जो अर्थ है, प्रेम का जो मतलब है वो ये है महाराज, इसमें किसी से कुछ लिया नहीं जाता, इसमें सिर्फ देना होता है। इसमें गिव वाला पोजीशन है, इसमें टेक नहीं किया जाता, सिर्फ देना ही देना है। अब वो कैसे भी हो, कैसे भी हो। अब मुझे उसमें हो सकता है देने में मुझे परेशानी हो रही हो, मैं कंगाल हो जाऊं, मेरे पास कुछ भी ना बचे, मेरे पास खाने को ना हो, घर ना हो, मुझे कष्ट मिल सकता है, मैं बहुत पेन में रह सकता हूं। श्री राधे। लेकिन वह पेन बहुत मीठा होता है, वेरी स्वीटेस्ट पेन होता है। श्री राधे। और उस पेन का आनंद वही जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम किया हो तो जाने ही क्या, वह प्रेम किया हो तो जाने ही क्या। अब जिसने वो प्रेम किया ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो महाराज, अब कितने लोग आप लोग प्रेम करते हो, कितने लोग प्रेम का प्योरेस्ट फॉर्म देखना है तो देखिए गोपियों, वहां प्योरेस्ट फॉर्म।
श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एकदम प्योरेस्ट, जिसमें मेरे श्याम सुंदर को प्रसन्नता है, वो मेरे लिए बढ़िया है। जहां मेरे मालिक खुश हैं, वहां मैं खुश हूं। यह है प्योरेस्ट फॉर्म। यानी उनसे कुछ चाहिए नहीं, वो खुश रहें। मेरी आस यही है ऐ भगवन, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही है ऐ भगवन, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको सुनाया करूं। मेरी आस यही है ऐ भगवन, तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको सुनाया करूं। मेरी आस यही है भगवन, तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही है भगवन, तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको सुनाया करूं। मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको सुनाया करूं। मेरी आस यही है भगवन, तुझे अपनी कहानी सुना। कोई बहरा कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे। कोई बहरा कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे। मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको मनाया करूं। मेरी आस यही है ऐ भगवन, तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस, आपको पूजा करो ऐ भगवन, तुझे अपनी कहानी। मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको सुनाया करूं। मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको सुनाया करूं। क्या चीज़ है वो सेवा तेरी, चढ़ता है भला तुझ पर
चीज है जो सेवा में तेरी चढ़ जाए भला तुझ पर ये मेरी मैं फूल बना कर दिल अपना मैं फूल बना कर दिल अपना जो ना चरणों में तेरी चढ़ाया करूं मैं फूल बना कर दिल अपना मैं फूल बना कर दिल अपना जो ना चरणों में तेरी चढ़ाया करूं मेरी आस यही है मैं भगवान अपनी कहानी सुनाया करूं मेरी आस यही है मैं भगवान तुझे अपनी कहानी सुनाया मैं कैसे भुलाऊं तेरे प्यारे कोनी में पलकों से वारूं तेरे प्यारे को मैं कैसे भुलाऊं तेरे प्यारे कोनी में पलकों से वारूं तेरे प्यारे को तेरे चरणों की धूल को चंदन बना तेरे चरणों की धूल को चंदन बना तेरे लगाया करूं मेरे चरणों को चंदन बना तेरे माथे पर लगाया करूं मेरी आस यही है मैं भगवान तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं मेरी आस यही है मैं भगवान तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं मेरे रोने के तुझको दुआएं हंसी रोने के तुझको दुआएं हंसी मैं रो रो के तुझको सुनाया करूं मेरे रोने के तुझको दुआएं हंसी रोने के तुझको दुआएं मैं रो रो के तुझको सुनाया करूं रो रो के तुझको श्री राम ये है प्रेम, इसमें अपना कुछ भी नहीं। अगर मेरे रोने से आपको प्रसन्नता मिलती है मेरे मालिक, तो पूरे जीवन भर आपको रोकर सुनाना चाहता हूं। मेरे जीवन में कभी हंसने की नौबत ही ना आए, कभी भी हमें इच्छा ही नहीं। हम नहीं चाहते कि हम कभी हंसें, हम सदैव रोना ही चाहते हैं। अगर आपको प्रसन्नता मिलती है मेरे रोने से, यह है प्रेम। भक्त यहां रोने को भी तैयार है। दुनिया कुछ भी कहता है, कोई फर्क नहीं, कोई परवाह नहीं। हो सकता है घर वाले कहें बहरा हो जाए, कुछ सुनाई नहीं पड़ता क्या, कहेंगे, पर कहते भी है, बिल्कुल कहेंगे। बोले पागल है, बहरा हो गया, पागल हो गया, अरे मैं बेवकूफ इंसान, पता नहीं क्या करने में लगा पड़ा है। माला लेकर घूमता रहता है, हाथ टूट के तेरे। कई बार तो लोग पूछ देते हैं, माला ऐसे झोली लटका कर ऐसे हरिनाम कर रहे हो ना, तो लोग पूछना भाई साहब हाथ में कुछ हो गया क्या, बड़ी देर से लटकाए पड़े हो। हाँ, आप क्या पूछे ना पूछे, हमारे यहाँ तो कई बार पूछ देते हैं। अगर एकदम से अचानक कोई देख ले ना तो पूछेगा, वो बड़ी देर से देखता रहेगा पता नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि भाई स्थिति है ना,
श्री राम। जिस बंदर ने मिली, जिस बंदर ने मिली चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। अब इमली वाले बंदर को अमृत दे दोगे तो कब उसको कब पता चलेगा क्या मिल गया। अब वो हरिनाम तो बेचारा कभी किया नहीं, देखा नहीं, न चित्त लखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। अब न जिसने चित्त लखा है, न चरित्र सुना है, न भगवान की कथा सुनी, उसे कहा पता कि हरिनाम की कोई चीज है, ये भी कोई करने वाली चीज है, और ये भी यही करने वाली चीज है, बाकी सब बेकार है। सिर्फ वही करने वाली चीज है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं। क्योंकि जिस बंदर ने मिली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। तो हो सकता है लोग कहें, बहरा कह देगा कोई, घर वाले ही कहते हैं, महाराज बाहर वाले तो बाद में कहेंगे, पहले तो घर वाले कहते हैं बाबा बनेगा बेवकूफ। सबसे पहले तो घर वाले बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल करें, बोले मैड है, पागल है, बहरा हो तो सुनाई नहीं देता। कोई बहरा कहे या दीवा, कोई बहरा कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे। कोई बहरा कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल सारा जमाना कहे। मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको मनाया करूं। मेरी आस यही है भगवान, तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे मालिक, कोई कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो कोई फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला। मुझे अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपसे। आपको किस बात में खुशी मिलती है? अगर आप मेरे रोने से खुश हैं, जमाना मुझे बहरा कह रहा है, पागल कह रहा है, दीवाना कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, अगर उसमें आपको खुशी मिलती है, मैं सदैव रोता रहूं, तो संसार क्या कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, घर वाले क्या कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सदैव रोना चाहता हूं, कभी हंसना चाहता ही नहीं, इच्छा ही नहीं हंसने की। यह है प्योरेस्ट फॉर्म, यह है प्रेम, जिसमें अपने प्रेमी की खुशी ही सर्वोपरि है, उसके अलावा सब कुछ बेकार है। अब चाहे हो सकता है प्रेमी को खुश करने में मुझे दुख सहना पड़े, लेकिन वो दुख बड़ा मीठा होता है हमारा, वो भी दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट दुख जो होता है वो सबसे स्वीटेस्ट है। स्वीट नहीं है, स्वीटेस्ट है हमारा। श्री राधे, श्री राधे। प्रभु मेरे पास कुछ तो है नहीं, प्रेमी के पास कुछ भी नहीं होता। प्रेमी जीव तभी बनता है, मैंने कहा प्रेमी तब बनोगे जब सब कुछ छोड़ करके मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां तो प्राण ही देना है, हो सकता है आपके प्राण की भी नौबत जाने की आ जाए। तो प्रेमी बनने के लिए तो ये प्रेमी आदमी तभी बन सकता, मैंने कहा ना वो इंसेक्ट का फॉर्म है। इतने सारे इंसेक्ट्स में से वो 10-20 ही क्यों उड़ते हैं? ऐसा तो नहीं कि वो 10-20 इंसेक्ट्स होते हैं, 10-20 कीड़े ही होते हैं उड़ने वाले। वहां तो आप कह सकते हैं मिलियंस हैं, चारों तरफ आप देखें इंसेक्ट्स भरे पड़े हैं, उसमें से 10 उड़कर आते हैं, 20 आते हैं, 50 आते हैं, 10, 20, 50, 100, 200 वही आकर होते हैं। बाकी सब वहीं से बैठकर देख रहे होते हैं घर से ही। बोले वो गया मरेगा, बोले वो तो बेवकूफ है, हम थोड़े बेवकूफ है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारे पास खाने पीने को सारा सामान है, ये सब छोड़ के हम इनके पीछे पड़े रहे और मर जाए। हम क्यों मरे? मरे हमारे दुश्मन। ये है लव,
ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ये प्रेम नहीं। प्रेम में तो क्या चीज है जो सेवा में तेरी चढ़ जाए भला तुझ पर ये मेरी, क्या चीज है जो सेवा में तेरी चढ़ जाए भला तुझ पर ये मेरी, मैंने फूल बना कर दिल अपना, मैंने फूल बना कर दिल अपना, क्यों ना चरणों में तेरी चढ़ाया करूं, मैं फूल बना कर दिल अपना, क्यों ना चरणों में तेरी चढ़ाया करूं, मेरी आस यही है ऐ भगवन, तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको सुनाया करूं, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको सुनाया करूं। श्री राधे। अब मेरे प्रेमी के पास कुछ भी नहीं होता, वो भिखारी होता है, पूरा बेघर होता है, क्योंकि जब प्रेम हो जाता है ना महाराज, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर घर वाले तो ऐसे ही उसको बेदखल कर देते, बोले पागल हो गया, पता नहीं किसको क्या लिख देगा, पता लगा कौन किसको सिग्नेचर क्या कर दे, तो सारा धन संपत्ति पता लगा कोई बाबा ले गया, भारी आप या पता नहीं पड़ोसियों ने, क्योंकि ये तो पागल है, इसको तो कोई दिमाग है नहीं, तो सबसे पहला काम घर वाले यही करते कि इसको बेदखल कर दो, यानी संपत्ति से उसका हिस्सा समाप्त कर दो भाई, ये घोषित करते पागल हो गए, तो फिर इसके सिग्नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो प्रेम की अवस्था है उसमें कुछ भी नहीं होता, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मालिक, क्या दूं, आंसू है वो तो दे ही रहा हूं, इसके अलावा भी अगर कुछ देना चाहूं तो है नहीं। एक चीज है और वो है, क्योंकि पागल हो चाहे कोई भी भाई, मेरे हृदय को तो कोई छीन नहीं सकता। मैं फूल बना कर दिल अपना, क्यों न चरणों में तेरी चढ़ाया करूं, मैं फूल बना कर दिल अपना, क्यों न चरणों में तेरी चढ़ाया करूं। प्रभु, जो मेरा हर्ट है ना, इसी को पुष्प बनाकर आपके चरणों में चढ़ा सकता हूं, और यही चढ़ाऊंगा भी, दिन रात इसी को चढ़ाऊंगा, आंसू भी बहाऊंगा, और पुष्प के रूप में अगर कुछ देना होगा तो मेरे पास दूर भी नहीं है, अपने इस हर्ट को ही फ्लावर बना करके आपको दे रहा हूं। श्री राधे। राधे। कैसे भूल जाऊं प्रभु आपके उस प्रेम को, मैं कैसे भुलाऊं तेरे प्यार को, नींदे पलकों से मारूं तेरे प्यार को, मैं कैसे भुलाऊं तेरे प्यार को, नींदे पलकों से मारूं तेरे प्यार को, तेरे चरणों की धूल को चंदन बना, तेरे चरणों की धूल को चंदन बना, माथे पर अपने लगाया करूं, तेरे चरणों की धूल को चंदन बना, तेरे चरणों की धूल को चंदन बना, माथे पर अपने लगाया करूं, मेरी आस यही है भगवन,
मेरे रोने पे तुझको जो मेरे रोने आप लोग बोलो आगे। मेरी आस यही है, यही है तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से तुझको सुनाया करूं। श्री राधे। यार मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है मेरे मालिक, आपके उस प्रेम को कैसे भूल जाऊं जो आपने हमें दिया। भगवान हमारे गोविंद तो सदैव प्रेम करते हैं। ये शरीर दिया ये उनके प्रेम को ही परिभाषित करता है, नहीं तो ये शरीर ही नहीं मिला होता। मनुष्य जीवन मिला ये भगवत प्रेम है हमारे ऊपर, ये उनकी कृपा। जो ये शरीर दिया उन्होंने, वो इसलिए दिया कि हम भी अब जाकर उन्होंने तो अपना प्रेम दिखाया, लेकिन यहां आकर हम बेईमान हो जाते हैं, यहां हम चीटिंग करना शुरू करते हैं, यहां हम चीटर बन जाते हैं, यहां पूरा करप्ट हो जाते हैं, यहां पूरा भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं महाराज। पूरा ऊपर से नीचे तक करप्ट रहते, फुल फ्लैश भ्रष्टाचार। इसी को कहते हैं हमारे मालिक के साथ गद्दारी करना, इसको करप्शन कहते हैं। करप्शन का जो फॉर्म है वो आपके ऑनर के साथ आप चीट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड करप्शन। टू बी द ऑनर, ऑनर कौन है, मालिक कौन है भाई। सांसारिक जीवन में हम लोग देखें, नॉर्मल जीवन में आप देखें, नॉर्मल लाइफ में तो जहां पर भी हम काम करते हैं, अरे कहीं भी वहां पर जो हमारा बॉस है या जो कंपनी है या जो गवर्नमेंट है या कुछ भी, आप इसको जिस फॉर्म में लेना ही, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, अगर वहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करप्शन। यानी अपने जो बॉस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मालिक है, उसके साथ हम गड़बड़ कर रहे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन ही हमारा मालिक है, वही हमें भोजन दे रहा है, पैसा देता है महीने में लास्ट में, और अगर उसके साथ हम कुछ चीट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड करप्शन। तो कहते हैं करप्ट हो, करप्शन कर दिया भाई, उसने बहुत भ्रष्टाचार किया, वो करप्ट है। फिर हम लोग कहते हैं वो करप्ट आदमी है। फिर अपने आप से पूछो कि वो है या आप ही हो, यू आर ऑल्सो। क्योंकि वो तो सांसारिक ऑर्गेनाइजेशन में आप थोड़ा बहुत घोटालेबाजी कर रहे हो हैं, जिनके यहाँ 20 साल 22 साल के बाद आपने जॉब ज्वाइन किया, आफ्टर 20 इयर्स 22 इयर्स और 24 इयर्स, एंड देन उस समय आपने एक जॉब ज्वाइन किया और उसके साथ अगर थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ कर दें, अप्स एंड डाउन कर दें, तब आप कहते हैं जी, हम सब कहते हैं जी करप्शन कर लिया। और जिसने ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जिस मालिक ने हमें ये शरीर दिया, उसके साथ अगर चीट करो तो उसको क्या करोगे? क्योंकि आप भूल गए ना, यहां आते ही जीव सब भूल जाता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता। फिर तो यहां ऐसे मस्त होता है सांसारिक नशे में, पूरा फुल फ्लैश, कि फिर कुछ भी उसे याद नहीं रहता। फिर तो सोचता है जो हम कर रहे हैं वही सही है। श्री राधे। श्री राधे। और फिर वो सदैव हंसना चाहता है, सब कुछ अच्छा ही हो, ये है प्यार। लेकिन यहाँ प्यार शब्द जरूर आया है, लेकिन इसका फॉर्म प्यार का नहीं है, क्योंकि प्रेम शब्द कहने में वो भजन का लैंग्वेज में बड़ा उतार चढ़ाव हो जाता तो फॉर्म नहीं बनता, इसलिए यहाँ प्यार शब्द
लिख दिया गया। मैं कैसे भूलाऊं तेरे प्रेम को, नींदे पलकों से मारूं तेरे प्रेम को। मैं कैसे भूलाऊं तेरे प्रेम को, नींदे पलकों से मारूं तेरे प्रेम को। तेरे चरणों की धूल को चंदन बना, तेरे चरणों की धूल को चंदन बना, माथे पर अपनी लगाया करूं। मेरी आस यही है भगवान, तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने पे तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो के तुझको सुनाया करूं। कैसे भूल जाऊं प्रभु, आपने मुझे इतना प्रेम दिया, कैसे भूलूं? नहीं भूल सकता। अब इच्छा तो यही है तेरे चरणों की धूल को चंदन बना, माथे पर अपनी लगाया करूं। श्री राधे। ये जो तिलक है ना महाराज, ये ठाकुर जी के चरणों का चंदन ही है, उन्हीं की धूल से ही लगता है। ये लकड़ी वाला चंदन नहीं है। ये जो लगाए हुए, ये वो भी चंदन ही लगाए हुए, ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, और ये दोनों भगवान चरणों की मिट्टी है। ये जो शब्द लगा हुआ, तेरे चरणों की धूल को चंदन बना, माथे पर लगाया करूं। मेरी आस यही है भगवान, तुझे अपनी कहानी सुनाया करूं। श्री राधे। लेकिन इस प्रेम को कौन जानेगा, इस दर्द को कौन जानेगा? ये जो प्रेम का जो दर्द है, ये स्वीटेस्ट दर्द है महाराज, दुनिया का सबसे ज्यादा। ये तो वही जानेगा जिसने कभी प्रेम किया हो, जिसने प्रेम किया ही नहीं। जिस बंदर ने मलिन ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम किया हो को जाने ही क्या, वह प्रेम किया हो को जाने ही। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह इस प्रेम के दर्द को क्या जानेगा, उस प्रेम की आह को क्या जानेगा। इस दर्द को महसूस करने के लिए, इस दर्द का स्वाद लेने के लिए महाराज, तो बड़ी मीठा दर्द है, इतना मीठा कि मन करता है उसको बताइए। पहले भगवत प्रेम करना होगा, और भगवत प्रेम करने के लिए गौ सेवा करनी होगी। आज बिलाली बोल रही थी कुछ गिर गाय पर बोलने के लिए, काउ डंग है समथिंग, लेकिन आज मैं उलझ गया, इसी में तो इसी में रह गया, समय हो गया। श्री राम। क्योंकि ऐसा प्रसंग छिड़ा कि उससे निकल ही नहीं। Namaste
Oh